بچے کو انصاف چاہیے، میرے کو کوئی نہیں چاہیے، میری تین داغیں دی گئی ہے، میرے کو کوئی نہیں چاہیے، انصاف دے دے۔ میں بڑی محفل دے وچ میں گندی تھی گئی ہاں، میرے کو کوئی شے نہیں چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس پر رانا آصف حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کی شفاعت روز قیامت ہم گناہگاروں کی بخشش کا باعث ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، جدید دور میں ہم 2025 سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت پوری حکومت، پوری انتظامیہ ہر ضلع میں ایک ہی بات کر رہی ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، بچیوں کو خیر خیریت سے اپنے گھروں کو رخصت ہونا چاہیے، جس کے لیے انتظامیہ اپنے طور پر بھی اجتماعی شادیاں کرا رہی ہے، دھیرانی پروگرام چل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف لودھرا میں یہ ایک المناک واقعہ ہوا ہے۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں لودھرا کے ایک مقامی میرج ہال میں، جہاں ایک بچی کی شادی طے ہوئی تھی، 2 بجے بارات آنی تھی، لیکن دلہے والوں نے ایک موٹر سائیکل نہ ملنے پر بارات لانے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو ابھی اس کی والدہ سے جو ہے گفتگو کروائیں گے، اس دلہن سے گفتگو کرائیں گے اور اس کے والد سے گفتگو کروائیں گے کہ ان پر کیا کیا مٹوٹی ہے، کتنا کچھ وہ لے چکے تھے، لیکن صرف ایک موٹر سائیکل نہ دینے پر آج ابھی تک بارات نہیں آئی ہے۔ دلہن پارلر سے تیار ہو کر بیٹھی ہے، ماں کا رو رو کر برا حال ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، سب کچھ سجا ہوا ہے، لیکن نہیں ہے تو بارات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دلہن کی ماں موجود ہیں۔ میری بہن سے سو کیا مسئلہ تھے؟ سر ہر شے اسا دے دیتی ہے، جہیز سارا چاہ کے دے دیتا ہے، تے ایک موٹر سائیکل دی خاطر اُنا کے اساں براتی کے ناندے 2 بجے دے اساں انتظار کر کے بیٹھے ہیں، تک کوئی کہہ نہیں آیا۔ اچھا یہ دسو شادی کتنا تھی ہے تے کیویں تھی ہے رشتہ، سارا تفصیلات دسو، تساں کیویں رشتہ کیتا ہے تے کتنے عرصے پہلے تھی ہے سارا کچھ؟ یہ سار کہیں رشتہ ساڈا کروایا ہے جی، یہ تھی دنیا پور کو لگا ٹھٹا شہر ہے، دے کول تھوڑا جگہ ہے گاؤں ہے چک کے اتھا تے تھی ہے اس دا رشتہ تے نا میرے کو گاؤں کچھ نہیں بول سکے۔ اچھا جی تساں ہی اج تو پہلے جہیز وچ کتنے کیا کچھ دیتے، سارا تفصیلات دساؤ۔ سر الیکٹرانکس دا ٹوٹل سامان دیتے، اے سی دی منزل تک دیتی ہے، زیور دیتے، بچی فرنیچر دیتے، پیٹیاں دیتی، ہر شے دیتی۔ انہوں نے موٹر سائیکل دے پیچھے میری بچی نہیں گئے ساڈے کول کوئی جگہ نہیں سکے شادی تے بعد دے دے سو انہاں کے سکو اج چاہیے اسا یہ ٹائم ساڈے کول کوئی جگہ نہیں سکے تاکو کیا دو اسا کٹ کے ہون۔ تے ہن تساں کوئی وزیر اعلیٰ کو کوئی اپیل کرے سو بھی تہاڈا جڑا ظلم تھے کیا تھے بے سارا کتنے تساں پہلے دسو کتنا ٹوٹل کتنی مالیت دا سامان تساں دتا اسی جہیز وچ؟ سر 20-25 لاکھ دی منڈی ساری بنتی پئی ہے۔ میں وزیر اعظم دے اگوں میں ہاتھ پتھر دیا، میری بچی کو انصاف چاہیے، میرے کو کوئی نہیں چاہیے، میری تین داغیں دی گئی ہے، میرے کو کوئی نہیں چاہیے، انصاف دے دے۔ میں بڑی محفل دے وچ میں گندی تھی گئی ہاں، میرے کو کوئی شے نہیں چاہیے، میرے کو انصاف کہن کے دے دے، مینوں نہ کھولو، میری لونیاں سکھدیاں دی دی ہے، کوئی شے نہیں چاہیے۔ حالات آپ نے ملاحظہ کیے ہیں کہ ایک ماں کے دل پر گزرنے والی ماں ہی جانتی ہے، جس نے 9 ماہ اپنے رحم میں رکھا ہو کسی اولاد کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، پھر اسے نازوں نام سے پال کر بڑا کیا جاتا ہے، پڑھایا لکھایا جاتا ہے، ہنر سکھائے جاتے ہیں، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ 20 سے 25 لاکھ یہ بتا رہے ہیں کہ جہیز دے چکے ہیں، ایئر کنڈیشن تک دیا گیا ہے، لیکن صرف ایک موٹر سائیکل جو آج یہ کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکے۔ بہترین کھانے کا انتظام ہے، کھانا تیار ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، مہمان موجود ہیں، لیکن صرف ایک موٹر سائیکل نہ دینے پر جو ہے بچی اس وقت تیار ہو کر بیٹھی ہے اور بارات نہیں ہے۔ کوشش کرتے ہیں اگر بچے سے ہماری بات ہو جائے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ مانور آپ کتنا پڑھی ہوئی ہیں؟ 8۔ اچھا تو ابھی آپ کے ساتھ جو یہ ہوا، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں؟ بس مجھے انصاف ملے، ہر بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی پر کیا گزر رہی ہے، کوشش کریں گے اس کے والد سے بات کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو ہوا ہے اس پر ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے ساتھ والد موجود ہیں لڑکی کے، ان سے بات کریں گے۔ حضور آپ کا نام کیا ہے پورا؟ غلام مرتضیٰ صاحب۔
गुलाम मुर्तज़ा, जी गुलाम मुर्तज़ा। कहाँ रहते हैं आप? हम चक बवंजा गेलवार। ये रिश्ता कब हुआ था आपका? रिश्ता हुआ तकरीबन 1 महीने पहले की बात है। अच्छा, तो पहले ये शराइत तय हुई थी भी जहेज में क्या कुछ दिया जाएगा? नहीं कोई शरारत में नहीं थी। बाद में उन्होंने डिमांड डाली है कि ये मोटर बाइक भी लेके दें। अच्छा। हमने बोला था चलो कोशिश करेंगे बैग। फिर मैंने अपने रिश्तेदार उसको बोला था, वो उसका शोरूम वगैरह, मैंने बोला किस्तों मेरे थे 2,25,000 का दे रहा था। मैंने बोला 20,000 30 जो है मैं एडवांस देता हूँ, बाकी है। कल उसने जवाब दे रहा हूँ मुल्क के हालात से नहीं, जंग की वजह से ना मैं नहीं दे सकता। मैंने उसको जवाब दिया है कि यार मेरे पास पैसे की गुंजाइश नहीं, मैंने इधर काफ़ी खर्चा किया हुआ है, ये शादी के बाद कर दूँ। उन्होंने बोला आपने पहले बोला था कि देंगे। हमने तो अपने सब रिश्तेदारों को बताया कि जी सामान हो गया अपना मोटर बाइक जो है ना ये बारात वाले दिन देंगे सलामी के तौर पर। मैं कि मेरी गुंजाइश नहीं बनती, मैं शादी के बना, अगर हो सकता है आपको मिल सकते हैं मैं पैसे देता हूँ आपको, जो एडवांस है उधर से ले लें, बाकी किस्तें में भरता नहीं। उन्होंने बोला हमारा कोई वाकिफ़ नहीं है, मैंने खुद लेके दें। मैंने बोला मैं 25-30 लाख का सामान दे सकता, बाइक नहीं दे, मेरी अभी पोजीशन है शादी के बाद में कर दूँ। उन्होंने बोला नहीं हमारा नाक काट जाएगा, जो देने अभी देने नहीं करते तो हम हमारे रिश्ते से इनकारी है। मैंने बोला पहले आपने कुरान निज़ाम में हमारा सामान उठा के गए थे, मेरा सामान चला गया सारा कुछ, आप शेर बने हुए। उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, कोई सबूत दें, हमने सामान नहीं उठाया, कुछ भी नहीं उठाया, ये तू झूठ बोल रहा है, कुछ भी हमने नहीं। यानी जो आपने जहेज दिया उससे भी इनकारी हो गए? इनकारी हो गया बोलेंगे। आपके पास उसका कुछ सबूत है? हमारे पास सब कुछ सबूत है, लिखा हुआ है। अच्छा, वीडियोस भी हैं? जी। वो खुद आप सामान छोड़ कर आए थे और सारा खुद सेट करके आए थे? खुद सेट किया है उन्होंने, वीडियो भी भेजी, सारा कुछ सामान सेटिंग की। अच्छा। आज आनी थी 1 बजे बारात आनी थी, लेकिन अभी तक इंतजार में वो नहीं है। कितने बजे आपको उन्होंने मुतला किया कि हम नहीं आएंगे? नहीं, उन्होंने अपना तकरीबन 1 से पहले जब हमारा सारा खाना वगैरह सारे कुछ सब कुछ तैयार था, उन्होंने कॉल की थी। मैंने दूसरी एक औरत उससे पूछा, वो बोल रही है बे वो नहीं आ रहे, वो दूसरी जगह शादी करने के जा रहे हैं, यही बारात उधर लेके जा रहे हैं। मैंने बोला सामान वगैरह सब कुछ मैंने दिया, इतना खर्चा किया से मेरे काफ़ी रकम ख़त्म हो गई, तो इधर हैं। वो बोलते हैं वो उधर नहीं आ रहे, वो दूसरी जगह पर रिश्ता करने जाए। वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, मैं काले करके तक गया हूँ। और ये सारे मेहमान जो आए हुए हैं, ये खाना इतना तैयार है, ये उन्होंने ये नहीं सोचा कि किसी गरीब बाप पे और इज्जत पे और सारा कुछ ये जो गुजरा है इस पर कैश मैं यही बात कर रहा था। मैंने उनको बोला है कि मेरी बेटी है, बेटी वाले हैं, आप भी बेटी वाले, मेहरबानी करें आ जाएं, मुझे बरादरी में मेरा नाक काट जाएगा। वो क्या बोलेंगे बगैरों में रिश्ता किया, अभी ये मज़ा चक्कर क्या हुआ है। फिर भी उन्होंने इनकार की नहीं आ रहे, मेरे से बहुत ज़्यादा तो ये इतने मलियत का सामान चला गया, मेरी बेइज्जती होगी सारे, इतने वाकई मिकदार में खाना पका हुआ है, सारे मेहमान आए हुए हैं। ये क्या सोच रहे हैं दिल में, हमारे दिल में क्या बीत रही है। बच्ची जो पूरे दुल्हन के तौर पे तैयार होके आई है, अब वो काली जाएगी, वो रो रही है। माँ उसकी सुबह की पागल हुई है। तो अभी आप क्या चाहेंगे? आपने पुलिस को मुतला किया है? 5 पे कॉल किया है। हम वज़ीर आला वज़ीर आज़म पंजाब से, वज़ीर आज़म से मदद की अपील करते हैं, हमारे साथ इंसाफ हो जाए, हमारे जो सामान गया हुआ है कम से कम वो तो वापस मिले। इज्जत तो जो जानी थी चलेगी, अब माल तो कम से कम वापस मिले। वापस में वो सामान देने से भी इनकारी हो गया हम। वो तो खैर आपके पास वीडियोस हैं, लिस्ट है, इंशाल्लाह वो उम्मीद है हमारे डीपीओ जो हैं मौजूदा वो बड़े वो हैं रिटायर फौजी, वो बोल रहे हैं हम नहीं देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम नहीं देंगे, जो कुछ करना चले वो तो फिर अल्लाह खैर करेगा। बेटा आप क्या लगते हैं? जी उसका भाई हूँ। दुल्हन के भाई हैं? आप बताइए सारा क्या हुआ आज? जी वो सारा सामान चला गया था, 25-30 लाख का सामान है। वो एक मोटरसाइकिल नहीं दी थी, अबू ने के हालात से नहीं थे ना, अबू ने कहा बाद में मोटरसाइकिल दे देंगे, उन लोगों ने कहा अभी मोटरसाइकिल दे, हमारी बिरादरी में हमारा बस हमने बताया हुआ है सबको, इस वजह से फिर अभी वो 1 बजे का टाइम दिया हुआ था, बारात अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है, इतना खाना बना हुआ है, सारा मसला है, सारी बिरादरी आई हुई है, इस वजह से हम परेशान हैं। वज़ीर आला से गुजारिश है कि CM पंजाब मेहरबानी करिए, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, अल्लाह खैर करे। आप हजूर आप क्या लगता है? दुल्हन के मामू हैं आप? तो आप बताइए क्या किया आपके, इनका नाम बताइएगा ज़रा, कौन लोग हैं ये जी चौक मेतला के हैं जी, चक 36 के रहने वाले हैं। ये इन्होंने रिश्ता किया था, हमारे बड़े भाई हैं, ये जो करते हैं खुद ही करते हैं, ये बड़े जो हैं इन्होंने रिश्ता किया तो फिर वो अपने मुतालबे पहले भी करते रहे हैं थोड़े थोड़े। यानी कि इन्होंने पहले एक फ्रीज़र दिया तो उन्होंने कहा जी ये छोटा है, तो फिर वो वापस करके फिर वे बड़ा उन्होंने जो डिमांड किया वो, फिर एक कूलर पक्खा था जो उनको पसंद नहीं आया, वो भी उन्होंने महंगे वाला लिया। फिर एयर कंडीशन की डिमांड की,
तो ये ना डिमांडें उनकी पूरी कर कर के थक गए। अच्छा, अब ना इन्होंने माजरत भी की, भाई आप मेहरबानी करें, हम गरीब आदमी हैं। तो एंड पे उन्होंने आके कहा जी हम मोटरसाइकिल लेंगे 125, वो भी सलफ स्टार्ट। तो इन्होंने कहा भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप ऐसे करें कहीं किस्तों से ले लें, एडवांस मैं दे देता हूँ, जो यानी कि एडवांस में 50,000 भरना पड़ेगा या 60,000, तो वो मैं दे देता हूँ, बाकी किस्तें मैं बाकायदगी से भरता रहूँगा। वो कहने लगे जी आप अगर मोटरसाइकिल हमें मौके पे नहीं दे सकते सलामी के तौर पे, तो फिर हमारी इनकारी है, तो हम बारात लेके नहीं आएंगे। फिर बाद में ये कॉलें करता रहा, उन्होंने कोई कॉल ही नहीं उठाई। तो अब 1 बजे का टाइम था, तो इधर बैठ के खड़ के तकरीबन अब 5 बजने वाले हैं, अभी तक वो नहीं आए। तो ये पहले भी सारी डिमांडें ये करते रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से ये गुजारिश है कि ये एक जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है, इसका ख़ात्मा अच्छी तरीके से, आइंदा कोई भी किसी की बेटी से ऐसा ना करे। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना भाई, बेटी के लिए अब ये क्या गुज़र रही है, हमारे दिल पे क्या गुज़र रही है, माँ के दिल पे क्या गुज़र रही है। वो सुबह से रो रो के पागल है, अभी उसको पानी पिला के हमने उठाया है, थोड़ी देर बाद उसको पानी देते हैं, अभी उसकी हालत ऐसे है जैसे वो किसी से बात करने के काबिल ही नहीं है। तो ये तो ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये तो इन्होंने बहुत ज़्यादती की है इनसे। अब वो बच्ची बैठी है जो कि रो के अपना सारा हाल ख़राब किया हुआ है, बाप उसका भी बहुत। ये सर हमारे जो हुकाम आला हैं उनसे हमारी अपील है कि मेहरबानी करें, ये ज़्यादा देर तक ये नहीं चल सकेंगे, ये सरकारी इदारे, ये मकसद थाना, कल्चर, कचहरी, इनका जो फैसला है ना अर्जेंट अगर हो जाएगा तो फिर ये इंसाफ तक पहुंचेंगे। अगर इस काम को लंबा किया जाएगा ना 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, आज आ जाओ कल, ये तो वैसे मरे पड़े हैं, तो ये क्या करेंगे। लिहाजा हमारी अपील है DPO लोधरा साहब से कि ये इनका जल्द जो मामला है ना, जल्द अज जल्द इनको इंसाफ, ये तो चलने के काबिल ही नहीं। ये इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। अब ये देखें बच्ची बहुत छोटी थी तो उन लोगों ने बनाना शुरू किया जहेज, तो एक एक चीज़ बना कर दी है मेरी भांजी ने। तो उन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया, देखें बच्ची कितनी कम उम्र है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग इंसाफ दिलवाएं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, हमने हर चीज़ की एडजस्टमेंट की है, हर चीज़ की तैयारी की है, एकदम से मोटरसाइकिल की वजह से बच्ची के रुखसती रुक गई है। ये इंसाफ चाहिए, ये किसी की बच्ची के साथ भी नहीं होना चाहिए। आज इस बच्ची के साथ हो रहा है, कल को किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। हमने 25 लाख 20 लाख की सामान पूरा बच्ची को दिया है, उनके घर में भी रहा। क्या उन्होंने कहा हम सामान देते हैं ना हम रुखसती लेने के लिए। एक मोटरसाइकिल के साथ एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की जाए, ये नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में बिल्कुल। दुल्हन की वालदा, दुल्हन का वालिद और मामू और उनका भाई, आपने हालात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या हम मुसलमान कहलवाने के लायक भी हैं? इस किस्म के लोगों का जो दोज़ख है, जो हवस है पैसा कमाने की, या बच्चियों को बर्बाद करके उनके घर वालों से जो लूट खसूट जहेज़ के नाम पर की जाती है, क्या ये कहीं पूरी होगी? इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। लोधरा की मकामी 15 कॉल की, उस पर सिटी पुलिस लोधरा यहाँ आई है, मौका देख गई है और इन्हें ये मशवरा दिया गया, क्योंकि इनका ताल्लुक गेलेवाल में है और गेलेवाल का थाना लगता है, तो वहाँ भी ये जाकर अपनी दरख्वास्त देंगे, इंशाल्लाह मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन मैं यहाँ अपने DPO जनाब कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक और डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहतरमा लुबना नज़ीर, जो इस वक्त लोधरा को लीड कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम धी रानी को भी बड़े अहसन तरीके से निभा रहे हैं। अब तक लोधरा में इज्तिमाई तौर पर तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चियों के निकाह करवाए जा चुके हैं, रुखसतियाँ करवाई जा चुकी हैं। तो इस बच्ची पर भी दस्ते शफ़क़त रखे और उन पर जुल्म करने वाले जो भी हैं वो ये बता रहे हैं कि थाना ठट्ठा सादकाबाद के इलाके में वो आते हैं, चक 36 है, तहसील जहानिया बनती है। सो वहाँ अब गेलेवाल पुलिस जाए, इनका ना सिर्फ इनका ज़ाला हो बल्कि इन्होंने जो 34-35 लाख रुपए का जहेज़ उनके घरों में पहले से दे चुके हैं, सेटिंग कर चुके हैं, वो भी बरामद कराया जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए कि कैसे किसी बेटी की इज़्ज़त को दागदार किया जाता है, तार किया जाता है और माँ बाप को ऐसे रोने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखते रहिएगा मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ लोधरा।